નમસ્કાર દર્શકો, આજ હું કલ્પેશ સોલંકી આપને જીવનની અંદર બેસ્ટ રિલેશનશિપ કેવી રીતના રાખવી એના વિશે થોડો પ્રકાશપાત કરવા જઈ રહ્યો છું. શુદ્ધ અને પવિત્ર ગુજરાતી ભાષાની અંદર આજે હું તમને જણાવવા માટે જઈ રહ્યો છું કે એકબીજા પ્રત્યે કેવી રીતના રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવી, રિલેશન કેવા રાખવા જેથી કરીને આપણા જીવનની અંદર આપણું જીવન સુગંધીમય બને, આજુબાજુ રહેતા તમામ વ્યક્તિઓનું જીવન સુગંધીમય બને. તો આવો એવી એક સ્પીચને માણીએ. હાઉ ટુ બિલ્ડ ઇન બેસ્ટ રિલેશનશિપ ઇન અવર લાઈફ. આપણા જીવનની અંદર બેસ્ટ રિલેશનશિપ કેવી રીતના રાખવી. જો આપણા જીવનની અંદર બેસ્ટ રિલેશનશિપ કરતા આવડી જાય તો આજુબાજુના બધા જ લોકો ધન્યતા અનુભવે છે. જેમ કે અત્યારે આપણા સમાજમાં જીવી રહ્યા છે અને સમાજમાં જીવતા જીવતા આપણે આપણા ભાઈ પ્રત્યેના રિલેશનશિપ, આપણી બહેન પ્રત્યેના રિલેશન, આપણા માતા પિતા પ્રત્યેના રિલેશન, જેના મેરેજ થઈ ગયા હોય એ હસબન્ડ અને વાઈફ વચ્ચેના રિલેશન કેવા હોવા જોઈએ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આજે ઘણા બધા રિલેશનશિપ ડેવલપ ન હોવાને કારણે ઘણા બધા રિલેશનોમાં બ્રેક પડતી હોય છે, તિરાડ પડતી હોય છે. પરંતુ આપણા જીવનની અંદર આવું ક્યારેય ન થાય એના માટે કેવી રીતે જીવનમાં સારી રીતે રિલેશન રાખવા, કેવી રીતે રિલેશન બાંધવા એ પણ એક જરૂરી છે. આજે 2017નું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. આજે બધા જ કંઈક ને કંઈક આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જીવનની અંદર પ્રગતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પરંતુ શું આપણે આજે મોબાઈલનો જમાનો છે, આજે ઇન્ટરનેટનો જમાનો છે, આજે દરેક વ્યક્તિના જીવનની અંદર કંઈક ને કંઈક આવી વધતા ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે જ છે. મોબાઈલનો કેટલાક સદુપયોગ પણ કરતા હોય છે. ઇન્ટરનેટ કહેતા કે આ બધું જ પરિબળોને હું એક જ વસ્તુમાં કહી દઉં તો એ છે ટેકનોલોજી. ટેકનોલોજીનો લોકો સદુપયોગ પણ કરતા હોય છે અને દુરુપયોગ પણ કરતા હોય છે. મિત્રો, આપણે આ સૌથી પહેલી જરૂરિયાત છે કે આ બધી ટેકનોલોજી આપણી રિલેશનશિપમાં કેવી રીતે બાધારૂપ નીવડે છે. ઘણા બધા રિલેશનશિપ તમે ડેવલપ કરતા જોયા હશે, કેટલાક પર્સનલી ડેવલપમેન્ટના ક્લાસ પણ કેટલાકે ભર્યા હશે. પરંતુ શું આપણી પર્સનાલિટી ખરેખર ડેવલપ થઈ ખરી? જો આપણી પર્સનાલિટી ડેવલપ થઈ હશે, જેની પર્સનાલિટી ડેવલપ થઈ છે, he has been able to change his life, he has been able to change other people's life and they have been able to change the world they live in. તે સમગ્ર વિશ્વને પણ બદલવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે જો પોતાની રિલેશનશિપ પોતાની રીતે ડેવલપ કરી હોય તો, પોતાની પર્સનાલિટી ડેવલપ કરી હોય તો એ વ્યક્તિ જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે છે. મારે તમને એટલું જ કહેવાનું છે કે કેવી રીતના રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવી, કેવી રીતના જીવનમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરવો. મિત્રો, આજે ઘણા બધા સમય જેમ પસાર થતો જાય છે એમ ધીમે ધીમે આપણા ઘરના ભાઈના સંબંધો, માતા પિતાના સંબંધો, પિતા પુત્રના સંબંધો, હસબન્ડ વાઈફના સંબંધો ધીમે ધીમે ઘટી રહ્યા છે. એનું પરિણામ શું છે? કારણ કે આપણે એકબીજાને ટાઈમ નથી આપી શકતા, આપણે એકબીજાને વફાદાર નથી રહી શકતા. એનું એક જ પરિબળ છે કે આપણે આ બધી વાતાવરણની અંદર આપણો સમય જ નથી કાઢી શકતા. આપણે આપણા બાળકોને ભણવા મૂક્યા હોય પરંતુ બાળકો ભણે છે, શું કરે છે, ક્યાં જાય છે, માતા પિતાએ એને જોવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો અને એટલા માટે ઘણું બધું પરિણામ એનું વિપરીત આવી શકે છે આપણી રિલેશનશિપમાં ડેવલપ કરવા માટે. સૌથી વધારે હું પહેલા એક વસ્તુને લઈશ કે જે આપણું સ્ટાન્ડર્ડ હોય. આપણે પોતાના જીવનની અંદર સ્ટાન્ડર્ડને એક યુઝ કરીએ અને પછી એના બધા એ તરફ જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જેમ 10મા ધોરણમાં કે 12મા ધોરણમાં ભણતો વિદ્યાર્થી હોય, એ 12મા ધોરણની અંદર અભ્યાસ કરે. અત્યારે તો અમારા વખતની અંદર કેવું હતું કે 10મા ધોરણમાં કે 12મા ધોરણમાં ભણતો વિદ્યાર્થી હોય, એ વિદ્યાર્થીને ડાયરેક્ટ પર્સન્ટેજ ગણાતા. એટલે 95% આવ્યા હોય, 84%, 85% આવ્યા હોય. તો જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ કેલ્ક્યુલેટ થતી, અત્યારે કેવું થઈ ગયું છે 10મા ધોરણમાં કે 12મા ધોરણની અંદર પર્સન્ટાઇલ ગણાય છે કે જેના 95% આવ્યા હોય એને હાઈએસ્ટ રેકોર્ડ તરીકે ગણવામાં આવે. એટલે એની પર્સન્ટાઇલ ગુજરાતની અંદર ગુજરાત બોર્ડમાં ફર્સ્ટ ગણવામાં આવે. એટલે કે એની પર્સન્ટાઇલ 100% ગણવામાં આવે. એની સાપેક્ષ બીજા તમામ વિદ્યાર્થીઓની પર્સન્ટાઇલ ગણવામાં આવે છે. મતલબ કે એક વ્યક્તિ 100% નહોતો પણ એને સ્ટાન્ડર્ડ લીધું, એને 100 બનાવ્યો અને એની સાપેક્ષ વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધતા હોય છે, જીવનમાં પ્રગતિ કરતા હોય છે. મિત્રો, જીવનની અંદર પણ બેસ્ટ રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવા માટે પણ આ જ પગથિયું જરૂરી છે કે આપણા જીવનની અંદર એવા કોઈ વ્યક્તિને લઈએ કે જે સ્ટાન્ડર્ડ વ્યક્તિ તરીકે પ્રસ્થાપિત હોય, જેના આધાર પર, જેના સિદ્ધાંત પર આપણે
જીવી શકીએ એવાના સિદ્ધાંત આપણે આપણા જીવનમાં એપ્લાય કરી શકીએ, યુઝ કરી શકીએ. એના માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. ઘણા લોકો પોતાના જીવનમાં આદર્શ વ્યક્તિ બનાવતા હોય છે. આપણા આદર્શ ગુરુ છે, આપણા આદર્શ ભગવાન છે, એમને આપણે આદર્શ તરીકે લઈએ છીએ. સૌથી પહેલી હું વાત કરી રહ્યો છું હસબન્ડ અને વાઇફના રિલેશન કેવી રીતના જીવનમાં ડેવલપ કરવા. આજે ઘણા બધા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે કે હસબન્ડ અને વાઇફના રિલેશન ડેવલપ માટે. પરંતુ શું આજે હસબન્ડ અને વાઇફના રિલેશન ડેવલપ થઈ રહ્યા? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. कुछ गड़बड़ लग रहा है, थोड़ी सी चेक करना पड़ेगा. अभी जो 2014 का इंडिया का बजट आया था, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने घूस होने पर या एक्साइटमेंट होने पर कितना टैक्स लगाया? नहीं ना, तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं फुल ऑफ एक्साइटमेंट और थोड़ी खुशी के साथ. ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग. अच्छा, जुबान से निकली एक बात बदल देते हैं, कमान से निकला हर तीर बदल देते हैं. तुझसे तो मेरी हालत नहीं बदल गए, वरना बदलने वाला तो तकदीर भी बदल देते हैं. मेरे आदरणीय मेहमानों, श्रोतागण और कई कॉलेज से आए हुए सभी नवयुवान दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं. डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप इज द ओनली वे आउट फॉर इंडिया. तानाशाही, हम सब लोग जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आज से कई साल पहले ऐसा राजशाही था. उसी समय राजा खुद निर्णय लेता था और सभी प्रजा उसके निर्णय पर चलना पड़ता था. हम सब लोग जानते हैं उसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, हिटलर के बारे में आप सब लोगों ने यहां पर सुना होगा कि हिटलर आया, उन्होंने एक बुक लिखी थी माइंड ऑफ टाइम. उस बुक के बारे में कई लोगों ने पढ़ा. वहां पर इस बुक में खुद का निर्णय लिखा हुआ था, क्योंकि वो तानाशाही में था और खुद निर्णय लेता था और खुद निर्णय लेकर सभी जितने भी लोग वहां पर थे उसके हाथ पर चलने के लिए. माय नेम इज सोलंकी कल्पेश फ्रॉम IIT. मैंने जब पहला था 3-4 साल पहले, तो मुझे बहुत कुछ स्टेज फियर लग रहा था. मतलब कि जब स्टेज पर बोलना, ऐसे कोई स्पीच देना, वो बहुत डिफिकल्ट होता था, लगता था भी था उसी समय. लेकिन मैंने आज से 3-4 साल पहले यहाँ पर अमूल वॉल्केनो में, जो रोटरी क्लब ये आयोजित करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैंने यहाँ पर पहली बार पार्टिसिपेट किया इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, सोलो कॉम्पिटिशन. तो वहाँ पर इसके बाद मैं पिछले 3-4 साल से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिला कि यहाँ स्टेज पर परफॉर्म करना, स्टेज फियर को दूर होना चाहिए, कैसा परफॉर्म करना मुझे यहाँ से ही मिला. और आज मैंने कई बार कॉलेज में ऐसे कोई ऑडियंस के सामने मैंने स्पीच दी है और 8,000 से भी ज़्यादा लोगों के सामने आज मैं बोल सकता हूँ. उसका श्रेय यहाँ से ही जाता है कि यहाँ पर कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का हमको मिलता है और ये जो ऑर्गेनाइज करता है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. कम लोग हैं जिन्होंने पहले गोल बनाया है और इसके बाद वो उसी गोल तरफ जाना चाहते हैं और वो गोल को अचीव कर पाते हैं. तो जो लोग अचीव कर पाते हैं और जो लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लोग अचीव कर पाते हैं तो कैसे कर पाते हैं, और जो लोग अचीव नहीं कर पाते तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और वो क्यों अचीव नहीं कर पाते? सबसे पहली जरूरत है कि आपने गोल बना लिया. इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो स्टेप वो गोल चाहते हैं. दूसरा स्टेप क्या है कि आप जो जिस गोल पर बनाओ उसी गोल के बीच में आने वाले जितने भी अट्रैक्शन है, जितना भी डिस्ट्रैक्शन है जो आपको दिख रहा है, उसको हटा दे जाओ. और जिस दिन आप अपने गोल को हटाओ, गोल को बनाओ, इसका बीच में आने वाले सभी अट्रैक्शन को या डिस्ट्रैक्शन को हटाओ. इसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि गोल को फोकस करो. जैसे अर्जुन ने गोल को फोकस किया था, वैसे ही अपने गोल को आप फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे एक समय आएगा कि आप उस गोल को अचीव कर पाओगे. तो गोल को फोकस कैसे किया जाए? एक सिंपल सी नॉर्मल कहानी है. ये कहानी जब आप सुनोगे तब आप कोई भी गोल को, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो,
उसी गोल पर आप अचीव कर पाओगे, उसी गोल आप पा सकोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि गोल को फोकस कैसे किया जाए। ये कहानी है एक महाभारत की कहानी। शायद ये कहानी आपने टेलीविजन में देखी होगी, पिछले कई बार सुनी होगी, लेकिन सिर्फ ये समझकर छोड़ दी होगी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, उस पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया होगा। देखो हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है। मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँ, यहाँ से कर लूँ, यहाँ पर गूगल पर सर्च कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख लूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लूँ। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो कहाँ जाना है और जितना जाना है उस पर फोकस करना है। तो इस कहानी से ध्यान से सुनना कि मैं कहाँ पर फोकस करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहानी महाभारत की कहानी, द्रोणाचार्य का नाम सबने सुना होगा। एक बार द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को बुलाया और सबसे पहले द्रोणाचार्य खड़ा था, सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक लकड़ी का बड़ उन्होंने रख दिया और वहां पर 5 पांडवों को कहा कि उस लकड़ी का जो बड़ है पेड़ के ऊपर, उसी आंख में निशाना लगाना है। अब गोल तो सबको सेट हो गया कि मुझे क्या करना है एक्चुअली। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक करके एक सबको बुलाया। सबसे पहले आया युधिष्ठिर, उसी आंख पर निशाना लगाने लगा। जब वो निशाने लगा रहा था उसी समय द्रोणाचार्य ने उसको एक एक क्वेश्चन पूछा, युधिष्ठिर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, नदी में। गुरु ने कहा कि अच्छा जाके साइड में खड़े हो जाओ। दूसरा आया भीम, उसको भी यही क्वेश्चन पूछा गया। तो भीम ने यही कहा कि मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, नदी, टहनियाँ, बादल, सब कुछ दिख रहा है। भीम को भी साइड में बैठा दिया। और फाइनली आया अर्जुन। जब अर्जुन आया, अर्जुन को पूछा गया कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे यहाँ पर उस पक्षी की उस बड़ की आंख दिख रही है। गुरु ने उसके थोड़ा हिलाने की कोशिश की, नहीं और भी देखो, और भी कुछ और है, आपको नहीं दिख रहा? तो कहे नहीं गुरुजी मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी की उस बड़ की आंख दिख रही है। इसके बाद गुरु ने कहा कि अब निशाना लगाओ। अर्जुन ने जाकर निशाना लगाया, सीधा जाके उस बड़ की आंख में। तो वैसे ही मैंने 3 स्टेप बताया कि पहले गोल बनाओ, इसके बीच में आने वाले सभी अट्रैक्शन को हटाओ और फाइनली अपने गोल को फोकस करो, जैसे अर्जुन ने किया। आज दुनिया में सभी लोग जी रहे हैं, उसका 2 ही गोल होता है, एक चाहे लौकिक होता है और दूसरा आध्यात्मिक होता है। लौकिक गोल और आध्यात्मिक गोल, दोनों ही गोल में कैसे आगे बढ़ना है, इसीलिए सभी लोग जी रहे हैं। लौकिक गोल क्या होता है? मैंने कहा डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, वकील बना है, न्यायाधीश बना है, प्रोफेसर बना है, उद्योगपति बना है, ड्राइवर बना है, पायलट बना है। ये जो बनना है वो सब लौकिक गोल हुआ। कई लोग स्पोर्ट में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कई लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई लोग पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सब हुआ हमारा लौकिक गोल। और स्पिरिचुअल गोल मतलब कि आध्यात्मिक गोल क्या है? तो आध्यात्मिक गोल ये है कि कई लोग हैं जो जी रहा है, उसको गोलोक में जाना है, उसको वैकुंठ धाम में जाना है, उसको बद्रिकाश्रम में जाना है, उसको श्वेतद्वीप में जाना है, ब्रह्मोल में जाना है, अक्षरधाम में जाना है। ये हुआ हमारा अल्टीमेट गोल, मतलब कि आध्यात्मिक गोल। तो लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही मार्ग में आप आगे बढ़ना चाहते हो, दोनों ही मार्ग में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, तो पहले तो गोल बनाओ, इसके बाद इसके बीच में आने वाले सभी अट्रैक्शन को हटाओ और फाइनली जैसे अर्जुन ने उस पक्षी की आंख में फोकस किया था गोल को, वैसे ही हम भी अपनी लाइफ में गोल को फोकस करें तो हम भी अपनी लाइफ में चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों ही गोल पर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उस गोल को पा सकते हैं। धन्यवाद। मैं आज आपको एक ऐसी बात कहने के लिए जा रहा हूं जिस बात को सुनकर आपको शायद मजा आएगी, मतलब कि बहुत अच्छी बात है। इस स्पीच का टॉपिक ही है, आनंद में जीने का अधिकार तुम्हारा है। शायद ये पंक्ति कहीं ना कहीं बार आपने सुनी होगी। जब इंडिया में हम सब लोग जन्म धारण करते हैं तो पहला ये पंक्ति आती कि भारत जन्म दुर्लभ, कि भारत के अंदर जन्म लेना एक दुर्लभ बात है, लेकिन हमें जन्म मिल गया है अभी। तो ये पंक्ति भी आप सुन लो, आनंद में जीने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, आनंद में मरने का अधिकार तुम्हारा है। चलो मरने की बात छोड़ो, जीने की बात करते हैं। आनंद में जीने का अधिकार तुम्हारा है। हम सब आनंद में जीते हैं। आज भागदौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है, इसलिए मैं यूज करता हूँ लाइजॉन 3 in 1, जियो जी भर के। लेकिन कई बार ये खाकर भी कई लोग आनंद से नहीं जी पाते। आज स्कूल में बच्चे पढ़ते देखो, जब हम छोटे थे तो क्या करते थे? खुल के सेलिब्रेट करते थे,
कि भाई कोई भी चीज हमको मिल गई, खुल के सेलिब्रेट किया, एंजॉय करने लग गए, मतलब कि अपनी जिंदगी अच्छी तरफ से जी लिया। लेकिन सोचो आज का कैसा जमाना है, बच्चे धीरे धीरे वही बड़े होते चले जाते हैं। तो शायद हम कामयाबी तो बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी हंसी धीरे 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 कम होती चली जाती है। मतलब कि हम हंसना भूल जाते हैं, सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। जैसे आज 31 दिसंबर यानी कि 2017 का अंतिम दिवस। मान लो कई लोग बहुत कुछ सेलिब्रेट करेंगे, ड्रिंक लेंगे, ये वो मैं नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे कि नेगेटिव आप लो, ड्रिंक लो, ये सब डांस करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये बात यहाँ पर मैं कहने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी में आपको आसान बनाना है, सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहली बात ये भी आती है कि अपनी जिंदगी में हमेशा हंसते रहना। हंसते रहिए तो अपनी लाइफ आसान हो जाएगी, आपको कभी टेंशन नहीं होगा। आज दुनिया में, मैं सिविल हॉस्पिटल में था कई दिनों के पहले, वहां पर इंटर्नशिप चल रही, तो मैं वहां पर काफी लोगों को मैंने देखा कि काफी बढ़िया डिसऑर्डर से वो पीड़ित है। मतलब कि वो अपनी जिंदगी के लिए मनुष्य देह हमें मिला है, भगवान ने इतना अच्छा मनुष्य देह हमें दिया है, तो वैसे ही टाइम पास करते रहते हैं। और आज ज्यादातर लोग आप बस में ट्रैवल करते देख लो, घर पे बैठे हुए देख लो, मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, मतलब कि एंजॉय करना भूल गए हैं। हमारी जिंदगी एक मोबाइल में सीमित हो चुकी है। हम जैसे बच्चे थे तब खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, मतलब कि जितने भी गेम्स आती थी वो खेलते थे। आज क्या हुआ, आज छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, गेम्स कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर खेलने लग गए हैं। मतलब कि जो रियलिटी थी, रियलिटी में एंजॉयमेंट करना सब लोग भूल गए हैं, और वैसे ही एंजॉय करते हैं लेकिन सीमित हो गई है हमारी दुनिया। मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जब सीमित हो चुकी है, तब हमें लाइफ में एंजॉय कैसे करना है। सच्चा एंजॉय तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि भगवान का एंजॉयमेंट, इससे ज्यादा कोई एंजॉयमेंट इस दुनिया में है ही नहीं। आप कोई भी एंजॉयमेंट कर लो, लेकिन भगवान का आनंद है, जिस लोगों ने लिया है वही सबसे बड़ा आनंद है। इससे बड़ा आनंद कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन आज हम जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसमें भी हमें अपनी लाइफ को आसान बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। मैं क्या करता हूँ अपनी लाइफ में, मतलब कि कोई भी वीडियोस है वो कई बार जब फ्री टाइम मिलता है तब देखता रहता हूँ। जैसे मिस्टर बीन, कई लोगों ने उसका नाम सुना होगा, वो साइलेंट मूड पर कॉमेडी करता है। मतलब कि कॉमेडी है तो अंदर से हंसी आती है हमें, मतलब कि उसकी वीडियो देखनी चाहिए, बहुत सी अच्छी वीडियो है। पहले चार्ली चैपलिन था, चार्ली चैपलिन की वीडियो कई लोगों ने देखी होगी। चार्ली चैपलिन बहुत कुछ लोगों को हंसाते थे। मतलब कि आज भी है ऐसे लोग हंसाने वाले जिसको हमें देखना चाहिए। जैसे बहुत सी अच्छी कहानी है कपिल शर्मा शो। कपिल, मैंने काफी बढ़िया शो उसका देखा है। मतलब कि दूसरे हजारों कॉमेडियन में और कपिल शर्मा में, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। ऐसे हजारों कॉमेडियन है और कपिल शर्मा है, इन दोनों में यही डिफरेंट है कि कपिल शर्मा छोटी छोटी बातों में भी कॉमेडी कर देता है। कपिल शर्मा शो, पहले वो कॉमेडी सर्कस में काम करता था, इसके बाद कपिल शर्मा शो आया, वो भी मतलब इसके पहले कॉमेडी नाइट में कपिल चल रहा था, इसके बाद कपिल शर्मा शो आया, और अभी तो वो शो बंद हो गया, लेकिन वो अभी वो मूवी में काम करने लग गया है। तिरंगी या किस किस को प्यार करो, काफी बढ़िया मूवी में वो बिजी थे, इसलिए वो शो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बेसिकली क्या है कि हमें जब कपिल को देखते हैं तो हमें भी एक तरफ मतलब कि हंसी आ जाती है। तो वैसे ही अपनी लाइफ में ऐसी कॉमेडी सीरियल्स है, आज कॉमेडी मूवी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। मतलब कॉमेडी करना, मतलब कॉमेडी देखना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना, वो सबसे बड़ी बात है, वो हमें करना चाहिए। वो आज हम भूल गए, तो वो करना चाहिए। अपनी लाइफ को आसान बनानी है। सबसे पहली जरूरत, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को एक दिन में 1 घंटे तक आप इतना हंसो कि शायद दुख, दर्द, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन वो सभी दूर हो जाए और अपनी जिंदगी आसान हो जाए। तो ऐसे करना हमारी लाइफ की बहुत बड़ी जरूरत भी है और आज करना चाहिए। तो ऐसे ही हंसते रहोगे तो हमारा जितना भी डिसऑर्डर है, ऐसा कहा गया है कि लाफिंग इज बेस्ट मेडिसिन। दुनिया में काफी बढ़िया मेडिसिन, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो
काफ़ी बढ़िया मेडिसिन है इस दुनिया में चल रही है, अलग अलग डिसीज डिसऑर्डर के उसको रिलीव करती है, लेकिन लाफिंग इज बेस्ट मेडिसिन। आप हंसते रहो, आपको कोई रोग ही ना आए, आप वैसे ही अपना टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हताशा, निराशा, उदास, वो सारा का सारा दूर चला जाए और आप अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट से जी सको, सेलिब्रेट कर सको। तो अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट करना है, अपनी जिंदगी में हंसते रहना है, तो वैसे ही अपनी लाइफ बहुत कुछ आसान हो जाएगी। तो आनंद में जीने का अधिकार तुम्हारा है, हंसते रहो। तो वैसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट विद कपिल, शनिवार और रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन। हेलो, जय स्वामीनारायण। मैं कल्पेश सोलंकी। 2018 के साल की शुरुआत हो गई है और मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो 2018 साल की मतलब कि नए साल की सबको शुभकामनाएं। 2017 तक जैसा ही साल आपको रहा होगा उसको सब भूल जाइए। अब एक नया साल की शुरुआत हो रही है, तो उसी साल नए साल में आप अपनी ज़िंदगी को और भी आगे बढ़ाएं। जितना भी इल्यूजन है उन सभी इल्यूजन को रियलिटी में कन्वर्ट करें और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अपना जो गोल बनाया हुआ है उसी गोल को सिद्ध करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले हर साल में आपका हर एक सपना पूरा हो, अपना जितना भी इल्यूजन बनाया हुआ है उन सभी इल्यूजन एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, जितने भी सपने बनाए हुए हैं उन सभी सपने सच हो जाए। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्पीच देने के लिए जा रहा हूँ जिस स्पीच में आप अपने इल्यूजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब कि अपने गोल को कैसे अचीव किया जाए, अपने लक्ष्य को कैसे सिद्ध किया जाए, इसके बारे में मैं आज यहाँ पर आपको कुछ कहने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले है हाउ टू अचीव योर गोल, अपने गोल को कैसे सिद्ध किया जाए। 2018 साल की शुरुआत हो गई है और हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही नए साल की शुरुआत होती है तो हम बहुत कुछ बाह्य परिवर्तन करते हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह जरूरी है कि मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पर कहने के लिए जा रहा हूँ, जिस सेंटेंस जब आप सुनोगे तो आपको कई लोगों को शायद बुरा भी लगेगा, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर है, वो ऑडियंस को अच्छा लगे वैसा ही वो सब लोग कहते हैं, लेकिन मेरे फंडों का अकॉर्डिंग नहीं है। मेरे कई बात सब लोगों को कड़वी भी लगती है, लेकिन सच में आपको आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो बहुत कुछ करने की जरूरत भी होती है। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि गोल को कैसे सिद्ध करें, अपने लक्ष्य को कैसे सिद्ध किया जाए। 3 स्टेप मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। मैं एक सेंटेंस बोलने के लिए जा रहा हूँ कि इस दुनिया में 90% लोग हैं जिसका कोई गोल नहीं है। मतलब कि वो बस स्टेशन पर गए हैं, रेलवे स्टेशन पर गए हैं, उसका कोई गोल ही नहीं, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो क्या वो अपने लक्ष्य तरफ पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी बात, पहले तो अपने गोल बनाओ। नए साल आया, एक बहुत बड़ा अल्टीमेट गोल बनाओ आप। दूसरे भी लौकिक गोल भी आप बनाओ, जिस गोल को आप हासिल करना चाहते हैं, जिस गोल को आप पाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप गोल बनाओ। 90% लोग हैं जिसका कोई गोल नहीं है। बचे हुए 10% लोग, इसमें से 8% लोग ऐसे हैं जिसके गोल तो बना लिया, लेकिन इसके बीच में आने वाले अट्रैक्शन को वो नहीं हटा पाए, तो वो अट्रैक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने गोल को भूल जाते हैं। ऐसे 8% लोग हैं। बचे हुए 2% लोग, इसमें से वो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो गोल बनाते हैं, इसके बीच में आने वाले सभी अट्रैक्शन को भी हटाते हैं और फाइनली गोल को फोकस करते हैं। वो लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। तो पहला मैंने स्टेप बताया, गोल बनाओ। दूसरा स्टेप, इसके बीच में आने वाले सभी अट्रैक्शन को हटाओ और फाइनल स्टेप, इस गोल को फोकस करो। हाउ टू फोकस योर गोल, अपने गोल को कैसे फोकस करना है, मैं सिंपल व्यू में यहां से आपको बताऊं कि अपने गोल को कैसे फोकस करना है। तो गोल फोकस करने के लिए सबसे पहली ये जरूरी है, जब आपने न्यूज़ चैनल में, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि चलो भाई इस पेड़ पर ज़्यादा तक सनलाइट आ गई और पेड़ जलने लग गया, घर जलने लग गया। ऐसा कभी हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ पर रख दूँ तो 10-15 सेकंड में क्या होगा, आग लग जाएगी। सच में आग लग जाएगी। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा है कि हम गोल बनाते तो है लेकिन आग नहीं लगती।
जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कि गोल को फोकस करेंगे तब सच में हम गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मैं आपको गोल को फोकस कैसे करना है, मैं सिंपल सी एक कहानी यहाँ पर से आपको सुनाऊं, जिस कहानी को सुनकर, देखो ये कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन पिछले कई बार आपने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन ये समझकर छोड़ दी होगी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। देखो आज हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है कि मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँ, यहाँ से इकट्ठी कर लूँ, गूगल पर कुछ सर्च कर लूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख लूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, न्यूज़ चैनल देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। लेकिन सच में रियलिटी क्या है कि आपको सच में आगे बढ़ना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। ये हमारे आज के टाइम की रियलिटी। तो इस कहानी से ध्यान से सुनना कि मैं कहाँ पर फोकस करने के लिए जा रहा हूँ। यह है महाभारत की कहानी। आपने टेलीविजन में कई बार देखी होगी ये सीरियल्स, महाभारत के पहले आती थी, अभी तो नहीं आती है। तो महाभारत की कहानी, द्रोणाचार्य का नाम आप सब लोगों को पता होगा। एक बार द्रोणाचार्य ने क्या किया, 5 पांडवों को उसके पास बुलाया। 5 पांडवों में थे युधिष्ठिर, सहदेव, भीम, अर्जुन, नकुल। 5 पांडवों को उसके पास बुलाया और एक के बाद एक उसकी परीक्षा ली। सामने एक पेड़ था, उसी पेड़ पर नकली बड़ गुरु ने रख दिया और 5 पांडवों को कहा कि उस पेड़ के ऊपर जो बड़ है उसकी आंख में निशाना लगाना। अब गोल सेट हो गया, क्या करना है, उसकी आंख में निशाना लगाना। सबसे पहले आया युधिष्ठिर आया और उस पर निशाने लगाने लगा। जब वो निशाने लगा रहा था तो गुरु ने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि युधिष्ठिर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, टहनियाँ दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। गुरु ने कहा कि बहुत अच्छा, जाके साइड में खड़े हो जाओ। दूसरा आया भीम निशाने लगा। जब वो निशाने लगा रहा था तब गुरु ने एक क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन पूछा कि भीम आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। भीम ने कहा कि गुरुजी मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, नदी, टहनियाँ, बादल, सब कुछ दिख रहा है, आप भी जाके साइड में खड़े हो जाओ। एक करके एक, फाइनली कौन आया, अर्जुन आया और सामने पेड़ पर निशाने लगाने लगा। जब वो निशाने लगा रहा था तब गुरु ने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि अर्जुन, जैसे दूसरे लोगों को क्वेश्चन पूछा था वैसा ही क्वेश्चन अर्जुन को पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे यहाँ पर उस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ी हिलाने की कोशिश करी कि नहीं और भी देखो, और भी बहुत कुछ आपको नहीं दिख रहा। नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी की उस बड़ की आंख दिख रही है। गुरु ने कहा कि अब निशाना लगाओ, और जैसे निशाना लगाया जाके उस पक्षी की आंख में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन ने गोल को फोकस किया। हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ गोल है, लेकिन हम फोकस नहीं करते, गोल मिस हो जाता है, भूल जाते हैं। जितना भी इल्यूजन बनाया हुआ है लेकिन उस पर कोई इफोर्ट नहीं करते, वो सब मिस हो जाता है। आने वाले नए साल मतलब कि 2018 साल की शुरुआत हो गई है। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितना भी गोल है उन सभी गोल को हम अचीव कर पाए। जितना भी सपने हमने बनाए हुए हैं उन सपने को, सारे सपने को हम सच कर पाए, और जितना भी इल्यूजन बनाया हुआ है उन सारे इल्यूजन को हम अपनी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। जैसे अर्जुन ने गोल को फोकस किया वैसे हमारी लाइफ में हम भी इस गोल को फोकस करें और सारे के सारे गोल को सिद्ध कर पाए। वही भगवान से प्रार्थना। How to build best relationship in your life. जीवन के अंदर रिलेशनशिप केवी રીતના ડેવલપ કરવી એ जो होगा वो देखा जाएगा यार। मैं तो फेल होने के लिए कर रहा हूँ, ना तो सक्सेसफुल होने के लिए कर रहा हूँ। अगर फेल हो गया तो मैं डरता नहीं, कोई परवाह नहीं है, देखा जाएगा, कोई मर थोड़ी ना जाऊंगा। जो 2012 का इंडिया का बजट आया था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने खुश होने पर या एक्साइटमेंट होने पर कितना टैक्स लगाया था? नहीं ना? तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट और थोड़ी खुशी के साथ। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से 2.5 साल पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था बड़ौदा में स्पीच करने के लिए। पूरी तैयारी की, 1 महीना तक रट्टा मारा, स्पीच तैयार की। मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं स्पीच दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ मैं स्टेज पर जाकर मुझे देखा सामने 400-500 लोग बैठे हुए थे, सब लोग गए। मैं देखकर मैंने सोचा कि क्या हो रहा है। अपनी वो स्पीच मैंने निकाला, परछाई में घर से उठ गया। तब पीछे एक रूम था स्टेज के पीछे, वहाँ पर एंटर किया और फटाफट याद करने लग गया।
इतनी ही देर में सामने से एक लड़की आई, आकर मुझे कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्पीच। मैंने कहा अपनी स्पीच को मैं देख रहा हूँ, तो एक समझ में मेरी हालत लग गया है। तो वो कहेंगे कि आप नर्वस हो? मैंने क्या बात कर रहे हो? नर्वस लग रहा हूँ आपको? क्या बात कर रही हूँ? तो कहती है कि अच्छा, ऐसे हाथ खोल कर खड़ी हो गई। कहती है कि अच्छा नर्वस नहीं हो, तो लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? मैंने इधर देखा, आराम से इधर देखा। इसके बाद जब ये हुआ, किसी भी तरीके से मैं स्टेज पर चला गया, स्टेज पर पहुंच गया। सपोज आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या हुआ है, ये पोडियम है और मैं स्पीक करने के लिए फुल तैयारी के साथ माय नेम सोलंकी कल्पेश। अभी बोल रहा हूँ, मैं बोलना शुरू तो किया, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट के बाद फिर से ब्लैंक हो गया। दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, और जो ऑडियंस सामने बैठी हुई वो चिल्ले चिल्लाने लगे। तो मेरे दिमाग में जो भी कुछ आ भी रहा था वो चला गया। 2 मिनट वहाँ पे पड़ा था, उसी ऑडियंस में एक लड़का बैठा हुआ उसी कॉलेज का, वो पड़ा हुआ और जोर से मुझे कहा भाई कितने लोगों के मन में आता है कि भाई टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, क्या करें। आज से 2.5 साल पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया था बड़ौदा में स्पीच देने के लिए। पूरी तैयारी की, 1 महीना तक रट्टा मारा स्पीच तैयार। मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं स्पीच दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ गया, स्टेज पे जाके मैंने देखा 400-500 लोग सामने बैठे हुए हैं, सब हो गया ब्लैंक एकदम। क्या हो रहा है? अपनी वो पर्चा उठाया मटेरियल जो मैं घर से लेके गया था, इसमें सारा कुछ लिखा था, और वहाँ पर फटाफट याद करने लग गया। इतनी ही देर में सामने से लड़की आई, आकर मुझे कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तो स्पीच है। मैंने कहा अपनी स्पीच को मैं देख रहा हूँ, तो समझ गए मेरी हालत अभी क्या है। तो कहती है कि आप नर्वस हो? नहीं, क्या बात कर रही हो, नर्वस लग रहा हूँ। कौन सी बात कर रही है? तो कहती है कि अच्छा, ऐसे हाथ खोल के खड़ी हो गई। कहती है कि अच्छा आप नर्वस नहीं हो तो लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? देखा आराम से। इसके बाद जब ये हुआ, किसी भी तरीके से मैं स्टेज पर चला गया, स्टेज पर जाके खड़ा हो गया पूरी तैयारी के साथ। सपोज आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या होती वहाँ पे, ये पोडियम है, मैं स्पीच देने के लिए खड़ा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज सोलंकी कल्पेश एंड टुडे आई विल गो टू टॉक अबाउट। मैंने बोला तो शुरू किया, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर से ब्लैंक हो गया। और जब फिर से ब्लैंक हुआ तो पब्लिक और चिल्लाने लग गई। इसी ऑडियंस में एक लड़का बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ और जोर से मुझे कहा और उस समय मुझे धक्का लगा ये कर रहा है। इसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, किसी भी तरीके से अपने स्पीच कदम किया, नीचे उतरा। तो मैंने इस एक्सपीरियंस से 2 चीज़ें सीखी लाइफ में, अगर नहीं कर सकता। मेरे जैसा लड़का, जैसे बचपन में लोग मुझे कहते थे कि ये तो बहुत शर्मीला है, कहीं आ जाए कर, तो मैं कहीं पर आया जाए नहीं करता था, कुछ नहीं, घर पर बैठा रहता। अगर मेरे जैसा लड़का इतना शर्मीला था, वो वहाँ से लेकर यही स्टेज पे आके आप लोगों के सामने बोल सकता है, 2 घंटे को 5 मिनट भी बोल सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये थी एक प्रैक्टिकल चीज़। और दूसरी चीज़ समझ आई कि मैंने काम पकड़ लिया कि भैया जिंदगी में कभी रखना नहीं माना, इसलिए आज तो कुछ बोलने वाला मेरे जेब में कोई पैसा नहीं, कोई मटेरियल नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई रखता नहीं पारा, मुझे कुछ नहीं पता मैं यहाँ पर क्या करने वाला, मतलब कि ये सेमिनार यहाँ से नहीं होगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी है सचिन तेंदुलकर की कहानी। सचिन तेंदुलकर की कहानी शायद आपने कहीं ना कहीं बार सुना होगा। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहलाता है, उसकी कहानी जो देखें। 1989 एक टेस्ट मैच चल रहा था, उसी टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर भी वहाँ पर 16 साल का लड़का वहाँ पर बैटिंग करने के लिए आया। सामने वकार यूनिस, ऐसे बड़े बड़े फास्ट बॉलर की बॉलिंग वहाँ पर चल रही थी। 16 साल का लड़का वहाँ पर आया बैटिंग करने के लिए और पीच पर आके खड़ा हो गया। पहली बॉल आई वकार यूनिस की, आकर सीधा नाक में, और नाक से खून बनी, उसके कपड़े पर, उसके नोज पर, चारों ओर खून ही खून। लेकिन उसी समय ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में भी सचिन तेंदुलकर गिर गया। चारों ओर से जो फील्डिंग कर रहे थे सभी प्लेयर्स वहाँ पर आकर खड़े हो गए और आसपास में फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ आया सचिन तेंदुलकर को बचाने के लिए। जो सामने था
नवजोत सिंह सिद्धू, जो भी कॉमेडी मैन तो कपिल में आता है, वो नवजोत सिद्धू आया और सचिन तेंदुलकर को कहा कि अब बैठ जाओ, अब आपको कुछ करना नहीं है, आप पेवेलियन में चले जाओ, आप उठकर दवाखाना में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ। सबकी वर्डिंग थी, ऐसा खास करके जो टेलीविजन में देख रहा था वो वुमन, उसकी एक वर्डिंग थी कि ऐसे 16 साल के लड़के को यहाँ पर अलाउ ही नहीं करना चाहिए, इतने बड़े पेशेंट्स के सामने क्यों अलाउ किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर नहीं लग जाना चाहिए। लेकिन उसी समय सचिन तेंदुलकर वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने सिर्फ 2 वर्ड कहे और उसी 2 वर्ड को उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने अपने ऐसा कहा कि सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे के पूरे विश्व की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। वो सिर्फ 2 वर्ड थे, सचिन तेंदुलकर खड़ा हुआ, उन्होंने कहा मैं खेलेगा, सिर्फ 2 वर्ड ने सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी की पूरी विश्व की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। तो वो था सचिन तेंदुलकर का ऐसा वर्ड जिन्होंने आज विश्व में आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। यही सचिन तेंदुलकर की कहानी, उस कहानी को उस कहानी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अपने हौसले को बढ़ाया, जैसे एफएल टावर को ये सीधा चढ़ाया, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपने हौसले को बढ़ाना चाहिए, अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हम करेंगे तो हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ। यार ड्राइविंग कितना लोगों को आती है? ड्राइविंग आती है, सबको आती है। इसमें से 2 व्हीलर कितना लोगों के पास है जो 2 व्हीलर चलाते हैं? अगर आपने कहा 2 व्हीलर चलाते तो कहाँ चलाते हैं 2 व्हीलर? गुजरात की अलग अलग सिटी में या सड़कों पे। जो मुझे समझ आता है कि पता नहीं आप कितने सालों से 2 व्हीलर चलाते हैं और आज भी आप जिंदा हैं। ये कोई सक्सेस नहीं है क्या? बहुत बड़ी सक्सेस है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो फिर किरण जी को बोलो यहाँ आके बाइक चलाने के लिए। मैं बता रहा हूँ क्या होगा कि अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगेगा, अगले ही दिन उसके फोटोग्राफ के सामने स्कैंडल चल रही होगी। बोलो धार नहीं चढ़ा देना। कोई अगर पूछेगा उसकी माँ से कि कैसे हुआ, क्यों हुआ है सब, उसकी माँ कहेगी उन्होंने बहुत बड़ी गलती से ऐसे हो गया, उन्होंने रेड लाइट जब नहीं किया ना। देखो यहाँ पर रेड लाइट पर कोई नहीं रुकता, सब चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जिस तरफ जिन लोगों की लाइट ग्रीन है वो सामने से देखकर ऐसा ना कर दे कि क्यों भाई कहाँ आ रहा है, ये सब ना करे, तब तक रुकना मत बेटा, बस चलते रहना, चलते रहना। उसने दिमाग तो लगा दिया, रेड लाइट पर ब्रेक तो मारा, वो तो रुक गया, लेकिन पीछे बस वाला नहीं रुका, उसको साथ ले गया। मतलब कि वो अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री में बहुत बड़ा सक्सेसफुल था, बहुत ही सारी चीजों में, लेकिन इंडिया की टर्निंग में फेल हो गया, बुरे तरीके से फेल हो गया। अगर आप लोग सक्सेसफुल है तो प्रॉब्लम क्या है कि टाइम के साथ साथ सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। पहले टाइम में एक ड्राइविंग सक्सेस था हम सबके लिए, जब ड्राइविंग आ गए डेफिनेशन चेंज, डिग्री मिला सक्सेसफुल हो गया। ऐसा ही हुआ, हर एक की लाइफ में ऐसा होता है ना, डिग्री भी मिल गई। इसके बाद था कि मुझे कोई अच्छी सी प्रोफेशनल लाइन, इंजीनियरिंग, मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा, तभी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। एडमिशन भी मिल जाता है, इसके बाद सोचते हैं कि चलो यार अब जॉब मिलेगी तब सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जॉब भी मिल जाए तो उसे बीच भी कर सकते हैं, अगर कुछ लोग चाहे तो उसे सीट्स भी कर सकते हैं। मतलब कि वही कॉम्प्लिकेटेड फंडा, वही लाइन आपके सामने क्रिएट होने वाली थी, लेकिन वो भी नहीं। और आज के टाइम में ये करना नामुमकिन। હું કલ્પેશ સોલંકી આજે તમારી સમક્ષ એક એવું દ્રષ્ટાંત આપવા માટે જઈ રહ્યો છું જે દ્રષ્ટાંત સાંભળવાની તમને ખૂબ જ મજા આવશે અને જીવનમાં ઉતારવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે। મિત્રો, આપણા જીવનની અંદર આ જે દ્રષ્ટાંત છે, જ્યાં સુધી તમારો શ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધી આ દ્રષ્ટાંત તમને ખરેખર કામ લાગશે। એટલા માટે કારણ કે આ દ્રષ્ટાંત આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે। આપણા જીવનમાં ખરેખર જો આ દ્રષ્ટાંતને આપણે ઉતારી શકીએ તો આપણું જીવન ખરેખર આદર્શપૂર્ણ બનતું હોય છે। આપણી સમજણ અને આપણી શક્તિ પ્રમાણે આપણું જીવન આદર્શ બનતું હોય છે, સફળ બનતું હોય છે। મિત્રો, દ્રષ્ટાંત એવું છે, પ્રાણી સંગ્રહાલય તો તમે જોયું હશે, અત્યારે બરોડાની અંદર પણ કમાટી બાગ છે, એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ, અલગ અલગ પ્રકારના પક્ષીઓ, અલગ અલગ પ્રકારના જળચર પ્રાણી આપણને જોવા મળે છે। વાઘ, ચિત્તો, અમદાવાદના કાંકરિયાની અંદર પણ અત્યારે તમને ઘણા બધા પ્રાણીઓ
વ્હાઇટ પ્રકારના સિંહ પણ તમને જોવા મળે છે. સિંહ, ચિત્તા, દીપડા, અસંખ્ય પ્રાણીઓ, અસંખ્ય પક્ષીઓ એ ત્યાં લોકોને બતાવવા માટે મૂકવામાં આવ્યા છે. થોડા સમય પહેલા હું યુરોપની અંદર ગયેલો અને યુરોપની અંદર જર્મનીમાં એક આખું જૂ, પ્રાણી સંગ્રહાલય જેને કહેવાય, એ ત્યાં નવું બનાવવામાં આવ્યું છે હમણાં, જેની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના પ્રાણીઓને ત્યાં રાખવામાં આવ્યા છે. ઘણા બધા પક્ષીઓને પણ ત્યાં એ રાખવામાં આવ્યા છે. ત્યાં આગળ એ જર્મનીનો કાર્સ્ટન નોટ કે એનો જે મેઇન ઝૂ કીપર, એને એકવાર 3 કમ્પેરિઝન આપ્યું. એને અડધું જીવન એ પ્રાણીઓ સાથે જ વિતાવેલું છે. જોજો, હું તમને જે આ દ્રષ્ટાંત કહેવા માટે જઈ રહ્યો છું, એ માણસના મનના વિચાર એના પર આધાર રાખે છે. આપણા મનના વિચારો કેવી રીતના બદલવાના છે, આપણા મનના વિચારોને એક ડાયરેક્શન એવી આપીએ કે જેથી આપણું જીવન પરિવર્તન થાય. એના માટે આ દ્રષ્ટાંત ખૂબ જ કામ લાગશે અને છેક સુધી કામ લાગેલું છે. શાંતિથી સાંભળજો, ખૂબ જ રસપ્રદ દ્રષ્ટાંત છે. એ જે જર્મનીનો કાર્સ્ટન નોટ, એનો જે મેઇન ઝૂ કીપર, એને એકવાર 3 કમ્પેરિઝન આપી કે 3 પ્રકારના વાનર, એમને તારણ કાઢ્યું કે કયું જનાવર સૌથી નજીક આવી શકે છે માણસના મન પ્રમાણે. અને એટલા માટે જર્મનીનો જે કાર્સ્ટન નોટ, એને નક્કી કર્યું કે જે વાનર છે એ બુદ્ધિની સમકક્ષ, માણસની સમકક્ષ બુદ્ધિ માટે, એટલે કે વિચાર માટે થોડો નજીક આવી શકે છે એની વિચાર શક્તિ માટે. એટલે આજે જર્મનીનો કાર્સ્ટન નોટ, એનો જે મેઇન ઝૂ કીપર, એણે એકવાર 3 પ્રકારની કમ્પેરિઝન આપી કે 3 પ્રકારના વાનર એ અસ્તિત્વમાં છે. પહેલા તો ગોરિલા, જાયન્ટ, હ્યુજ, જબરજસ્ત, એના ખૂબ જ મોટા વાળ હોય એવો ગોરિલા. બીજા પ્રકારનું વાનર ચિમ્પાન્જી, એનાથી થોડું નાનું હોય. અને ત્રીજા પ્રકારનું વાનર આફ્રિકાના કોંગો બેઝિનમાંથી એ લોકોને એક પ્રાપ્ત થયું છે, જેનું નામ છે બોનોબો. BONOBO, બોનોબોઝ. આ 3 પ્રકારના વાનર પણ એને પ્રેક્ટિકલ કર્યો અને એક્સપેરિમેન્ટ પરથી એને શું કર્યું, જે જર્મનીનો કાર્સ્ટન નોટ, એને એવું તારણ આપ્યું કે આ વાનર છે, પણ વાનરની અંદર પણ અલગ અલગ પ્રકારના વાનરમાં બુદ્ધિની વિચાર કક્ષા જુદી છે. એને શું તારણ આપ્યું? આ દ્રષ્ટાંત એક દ્રષ્ટાંત છે, પણ જીવનમાં ઘણું બધું ઉપયોગી છે. એ જર્મનીનો કાર્સ્ટન નોટ કહેતા કે એનો મેઇન ઝૂ કીપર, એને આ 3 પ્રકારના વાનર લીધા. પહેલા તો ગોરિલા, ચિમ્પાન્જી અને ત્રીજા પ્રકારનો બોનોબોઝ. 3 પ્રકારના વાનર લીધા અને એક્સપેરિમેન્ટ કહેતા કે પ્રેક્ટિકલ કર્યો, પ્રયોગ કર્યો કે કેવી રીતના બુદ્ધિની કક્ષા લોકોની અલગ છે. એ જે કાર્સ્ટન નોટે એક ખાલી પાંજરું લીધું. પાંજરું એ બંધ હતું. એ પાંજરાને ખોલ્યું. અંદર પહેલા તો ગોરિલાને બેસાડવામાં આવ્યો. જેવો ગોરિલા અંદર ગયો, પાંજરું બહારથી બંધ કર્યું અને બહારથી એક સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર અંદર ફેંક્યું. એને પ્રેક્ટિકલ પરથી તારણ કાઢ્યું કે 7 દિવસ પછી તો આ ગોરિલાને ખબર પડી કે મારા માથા પર કંઈક વાગ્યું. બાકી એને સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર સાથે, કહેતા કે ડિસ્મિસ સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નહોતો. બીજા પ્રકારનું પાંજરું લીધું. એ પાંજરાની અંદર પેલા ચિમ્પાન્જીને બેસાડવામાં આવ્યો. જેવો ચિમ્પાન્જી એ પાંજરાની અંદર બેઠો, બહારથી પાંજરું બંધ કર્યું, સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર બહારથી ફેંક્યું, કહેતા કે ડિસ્મિસ બહારથી અંદર ફેંક્યું. જોયો, ચિમ્પાન્જી મનુષ્યની જેમ થોડોક વિચારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એણે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર હાથમાં લીધું અને આમ તેમ તોડફોડમાં પ્રયત્ન કર્યો. હજુ એનો ઉપયોગ નથી ખબર, પરંતુ એણે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે, પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે આમ તેમ તોડફોડમાં એ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરનો ઉપયોગ કર્યો. બુદ્ધિ અને વિચારની કક્ષાએ નથી. પણ એક ત્રીજો પેલો બોનોબોઝ એ ખાલી પાંજરું લીધું. એની અંદર બોનોબોને બેસાડવામાં આવ્યો. પાંજરું બંધ કર્યું અને બહારથી જેવું સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર અંદર ફેંક્યું, the right, less than 30 minutes the bonobo would have learned to figure out how to use, unlock the door and escape from the cage. 30
ત્રીસ મિનિટની અંદર કેવી રીતના લોકના સ્ક્રૂ ખોલવા, કેવી રીતના પાંજરું ખોલવું, અને અડધો કલાકમાં તે બહાર હતું. આટલું બુદ્ધિશાળી આ જાનવર છે. એના પરથી એને શું કમ્પેરિઝન આપ્યું? આ જર્મનીનો કાસ્ટર નોટ, એનો જે મેઇન ઝૂકીપર, એને શું તારણ આપ્યું કે આ ત્રણ પ્રકારના વાનર છે, પણ એ વાનરની અંદર વિચાર કક્ષા જુદી જુદી છે. એનો બોનોબોસ 30 મિનિટ્સમાં હી કેન ઓપન ધી કેજ. અડધો કલાકમાં તે પાંજરું ખોલીને બહાર આવી ગયો, કારણ કે એને સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરનો યોગ્ય ઉપયોગ હતો. એને આ પરથી તારણ પરથી એવું કહ્યું કે જે આજે બોનોબોની વિચાર કક્ષા છે ને, એ નાના 5 વર્ષના બાળક જેટલી છે. આપણે તો યુવાન છીએ, ઘણાની ઉંમર ઘણી બધી હશે, યુવાન વૃદ્ધ થઈ જાય છે કેટલા. એમ આપણા જીવનની આ દ્રષ્ટાંત પરથી એટલું જ જાણવા મળે કે કેટલાક માણસો હોય ને, એ પેલા ગોરીલા જેવા હોય. કારણ કે ગોરીલાના હાથની અંદર સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર આવ્યું, 7 દિવસ પછી એને ખબર પડે કે મારા માથા પર કંઈક વાગ્યું. એમ કેટલાક માણસો એવા હોય, એને ખબર જ ના હોય કે આ મનુષ્યનો જન્મ શા માટે મળ્યો છે, આ દેહે કરીને કરવાનું છે શું, મારે કેમ મંદિરમાં જવાનું, મારે કેમ પૂજા કરવાની, મારે કેમ ભક્તિ કરવાની, મારે કેમ સત્સંગ કરવાનો. સ્લો રિસીવર હોય, ઇનસેન્સિટિવ હોય, કારણ કે વિચારની કક્ષા નથી પામે. 70 80 વર્ષ સુધી એમને ખબર ના હોય કે મનુષ્ય જન્મનો હેતુ શું છે. બસ આમ તેમ ખાઈ પીને જલસા કરે, મજા કરે, આનંદ કરે. એનાથી વિષય એ જીવનમાં ના કંઈ વિચારી શકે, ના કંઈ કરી શકે. ગોરીલા જેવા હોય. 7 દિવસ પછી એટલે કે વર્ષો પછી એને ખબર પડે કે આ મનુષ્ય જન્મ શા માટે મળ્યો છે. કેટલાક માણસો પેલા ચિમ્પાન્જી જેવા હોય. ચિમ્પાન્જીના હાથમાં સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર તો આવ્યું, પણ એનો ઉપયોગ ના કરી શકે, યોગ્ય ઉપયોગ ના કરી શકે. એમ આપણી અંદર આપણે થોડી ઘણી બુદ્ધિ તો હોય, પણ એ બુદ્ધિ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભાઈ મને સારી જોબ મળી જાય, સારો બિઝનેસ થઈ જાય, સારું આ કામ થઈ જાય, કે રોજ હું લેટ ઉઠું છું તો વહેલો ઉઠી જાઉં. આવી નાની નાની બાબતોમાં ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. વિચારની કક્ષા નથી, સ્લો રિસીવર હોય, ઇનસેન્સિટિવ હોય, કારણ કે વિચારની કક્ષા નથી પામ્યા. પણ એ કહે છે કે બોનોબોસ 30 મિનિટ્સમાં હી કેન ઓપન ધી કેજ. જે નાના કે મોટા વિચારને પામ્યા હોય ને, એ આ મનુષ્ય જન્મનો હેતુ શા માટે છે, આ જન્મે કરીને કરવાનું છે શું, આ દેહે કરીને શું કરવાનું છે, આના વિશે વિચાર કરીને આ મનુષ્ય જન્મનો છેલ્લો જન્મ કરીને મોક્ષ મેળવીને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. સેમ સાધન તો સરખું છે, પણ વિચારની કક્ષા છે. તો આપણે પણ કંઈક અલગ વિચારી શકીએ. સાંભળ્યું તો ખરું, પણ થોડું અલગ વિચારી શકીએ. જેમ બોનોબોએ થોડું કંઈક અલગ વિચાર્યું તો સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર ખોલીને બહાર આવી ગયો. એમ આપણે પણ અલગ વિચારીએ. આ મનુષ્ય જન્મનો હેતુ શું છે, મનુષ્ય જન્મ શા માટે મળ્યો છે, આ દેહે કરીને કરવાનું છે શું. બસ આના પર વિચાર કરીને આ મનુષ્ય જન્મનો છેલ્લો જન્મ કરીને આપણે મોક્ષ મેળવીને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. જે લોકોએ આ વિશ્વની અંદર પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં, પોતાના કૌટુંબિક જીવનમાં, પોતાના સામાજિક જીવનમાં, પોતાના વૈશ્વિક જીવનમાં કંઈક અલગ વિચાર્યું છે, he has been able to change his life. He has been able to change other people's life and they have been able to change the world they live in. समग्र विश्व को बदलने के लिए वो तैयार हो जाता है. आपने सुना तो सही, તમે સાંભળ્યું તો ખરું, પણ અલગ વિચારી શકીએ. એ જ ભગવાન. હું કલ્પેશ સોલંકી. આજે જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી વર્ષ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોણ છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શું હતા, શું એમનું કાર્ય હતું, એ વિશે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના 100મા જન્મ શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે માત્ર 100 સેકન્ડમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો મહિમા કહેવા માટે જઈ રહ્યો છું. સૂરજ પૂછે છે, ચાંદો પૂછે છે, પ્રમુખ સ્વામી શું છે, પ્રમુખ સ્વામી શું છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ મહંત સ્વામી મહારાજમાં પ્રગટ છે. આજે પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે જ. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોણ છે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોઈ 20 કે 21 હજાર વર્ષ જૂના સંત નથી કે જેમણે આજના સમાજમાં શું ચાલે છે આની કશી જ ખબર ન હોય, કશી જ પડી ન હોય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક એવા સંત છે જે 20 કે 21મી સદીમાં પૃથ્વી પર જીવંત છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોઈ એવા સંત નથી કે જે 20 કે 21મી સદીમાં પૃથ્વી પર જીવંત હોય પણ હિમાલયની ગુફામાં સાધના કરતા હોય, કે જેમણે આજના સમાજમાં શું ચાલે છે આની કશી જ ખબર ન હોય, કશી જ પડી ન હોય.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવા એક સંત છે જેમણે 8 લાખથી વધારે પત્રોના જવાબો આપ્યા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવા એક સંત છે જે વિશ્વના 55થી વધુ દેશોમાં વિશ્વના 3.25 લાખ ઘેર ઘેર જઈને જેમણે સમાજના પ્રશ્નો સાંભળ્યા છે, જોયા છે, અનુભવ્યા છે અને એની પાછળ સમય કાઢેલો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવા એક સંત છે જેમણે સમગ્ર વિશ્વનો એક્સરે પાડેલો છે, સમગ્ર વિશ્વનો સોનોગ્રાફી કાઢેલો છે, જેમણે સમગ્ર વિશ્વનો કાર્ડિયોગ્રામ કે એન્જિયોગ્રામ કાઢેલો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવા એક સંત છે કે જે આજે સમગ્ર વિશ્વની અંદર લાખો લોકોના પ્રશ્નો જાણે છે, સમજે છે અને એને સોલ્યુશન લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવા એક સંત છે જેમણે સમાજની નાડ પારખી છે, કુટુંબમાં કે સમાજમાં, દેશમાં કે વિદેશમાં કે સમગ્ર વિશ્વની અંદર શાના પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોની જેમને ખબર છે એટલું જ નહીં પરંતુ એ પ્રશ્નોને મિટાવવા માટે જેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન આજે લાખો લોકોના વ્યક્તિગત જીવન માટે જેમણે સમર્પિત કર્યું છે. એવા એક સંત પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે અને એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આજે મહંત સ્વામી મહારાજમાં પ્રગટ છે. જય સ્વામિનારાયણ. હું કલ્પેશ સોલંકી આજે તમારી સમક્ષ એક એવો મહિમા કહેવા માટે જઈ રહ્યો છું કે જે મહિમા આજે પ્રમુખ સ્વામી નગરની અંદર આપણને જોવા મળે છે. પ્રમુખ સ્વામી નગર આટલું વિશાળ નગર, લાખો હરિભક્તો અહીંયા દર્શન માટે પધારે છે. અહીંયા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નગરની અંદર દર્શન કરવા માટે પધારે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો આટલો બધો મહિમા છે, પરંતુ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો મહિમા એના પછી ફલશ્રુતિ શું છે? આપણા જીવનની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શન કરીને, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ગુણોનું ગાન કરીને આપણે આપણા જીવનમાં શું મેળવવાનું છે? આપણે આપણા જીવનમાં એમના કયા કયા ગુણો ગ્રહણ કરવાના છે? હું તમારી સમક્ષ અત્યારે એક દ્રષ્ટાંત આપવા માટે જઈ રહ્યો છું કે જે દ્રષ્ટાંત આપણા જીવનની અંદર ખૂબ જ જરૂરી છે, જે દ્રષ્ટાંત આપણા જીવનની અંદર આપણું જીવન પરિવર્તન કરી શકે છે. તો એક દ્રષ્ટાંત છે, દ્રષ્ટાંત ધ્યાનથી સાંભળજો અને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરજો. એક દ્રષ્ટાંત છે જર્મનીનો જે કાર્સ્ટન નોટ. આ જે દ્રષ્ટાંત હું તમને કહેવા માટે જઈ રહ્યો છું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વિચાર કેવા જુદા હતા. જે નોર્મલ લોકો વિચાર કરે છે એના કરતાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કંઈક અલગ વિચાર કર્યો. એના પરિણામે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કેટલો વિશાળ સમુદાય અહીંયા માટે દર્શન માટે આવી રહ્યો છે. પ્રમુખ સ્વામી નગરના અહીંયા દર્શન માટે લાખો હરિભક્તો અહીંયા પધારી રહ્યા છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો આટલો મહિમા છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર, BAPS સંપ્રદાયની અંદર આ જે મહિમા જે વર્ણવવામાં આવ્યો છે, એક કેવા અલગ વિચાર સાથે એમનું જીવન હતું એ આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એના માટે હું અત્યારે એક દ્રષ્ટાંત આપવા માટે જઈ રહ્યો છું. ધ્યાનથી સાંભળજો કે આપણા સત્સંગની અંદર, સમુદાયની અંદર જીવનમાં મોક્ષ મેળવવા માટે શું કરવાનું હોય છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહે છે કે આપણા મનુષ્ય જન્મનો મોક્ષ ના થાય તો આ જન્મ નિરર્થક છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું આ વાક્ય આપણા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહે છે, ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે. તો હું જે એક દ્રષ્ટાંત આપવા માટે જઈ રહ્યો છું એ દ્રષ્ટાંત જીવનમાં ખૂબ જ જરૂરી છે. એક જર્મનીનો કાર્સ્ટન નોટ, એનો મેન જે ઝૂ કીપર, એણે એકવાર 3 કમ્પેરિઝન આપેલી કે 3 પ્રકારના વાનર એ અસ્તિત્વમાં છે. આ દ્રષ્ટાંત છે એ મગજના વિચાર પર છે કે આપણા વિચારો કેવા હોય છે અને વિચારે કરીને કેવી આપણે પોતાનું જીવન પરિવર્તન કરી શકીએ છીએ. તો એણે એકવાર 3 કમ્પેરિઝન આપી કે 3 પ્રકારના વાનર એ અસ્તિત્વમાં છે. એ જે ઝૂ કીપર હતો એણે કહ્યું કે એક છે ચિમ્પાન્જી, બીજો પ્રકારનો વાનરનું એણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું એ છે ગોરીલા, અને ત્રીજા પ્રકારના વાનરનું એમણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું એ છે બોનોબોઝ. જર્મનીના એક ઝૂમાંથી એક મળી આવ્યું છે આફ્રિકાના કોંગો બેઝિંગમાંથી, એ છે બોનોબોઝ, એટલે કે ચિમ્પાન્જી કરતાં થોડું નાનું હોય. આ 3 પ્રકારના વાનરની એણે કમ્પેરિઝન આપી અને શું કહ્યું, એને કેવી રીતના વિચાર, દરેક વ્યક્તિની અંદર કયા કયા વિચાર છે અને આપણે આ સમય ઉત્સવમાંથી કેવા વિચાર લઈને આપણું જીવન પરિવર્તન કરવાનું છે એના પર ફોકસ કરવાનું છે. તો આ જે જર્મનીનો કાર્સ્ટન નોટ, એને જે ઝૂ કીપર હતો એણે એક પ્રેક્ટિકલ કર્યો. જેવો સાયન્સની અંદર આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ એવો જ એણે પ્રેક્ટિકલ કર્યો કે એક પાંજરાની અંદર પેલા ચિમ્પાન્જીને મૂકવામાં આવ્યું અને ચિમ્પાન્જીને મૂક્યો, પાંજરું બંધ કર્યું અને બહારથી એક સ્ક્રૂડ્રાઈવર અંદર ફેંક્યું. તો જેવું સ્ક્રૂડ્રાઈવર અંદર ફેંક્યું, ચિમ્પાન્જીને 7 દિવસ પછી ખબર પડી કે મારા માથા પર કંઈક વાગ્યું. બાકી એને સ્ક્રૂડ્રાઈવર સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નહોતું. બીજા પ્રકારનો ગોરીલા, એને ગોરીલાને એક પાંજરાની અંદર પૂરવામાં આવ્યો અને બહારથી એક સ્ક્રૂડ્રાઈવર અંદર ફેંક્યું. તો ગોરીલાને સ્ક્રૂડ્રાઈવર હાથમાં આવ્યું પણ આમ તેમ તોડફોડમાં પ્રયત્ન કરો, એનો પ્રોપર કે યોગ્ય ઉપયોગ શું છે એ જાણી ના શક્યો. પછી ત્રીજા પાંજરાની અંદર પેલા બોનોબોઝને અંદર મૂકવામાં આવ્યો. બોનોબોઝ એ માણસની જેમ થોડું વિચારી શકે છે, એટલે મનુષ્યની જેમ વિચારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ત્રીજા પાંજરાની અંદર બોનોબોઝને મૂકવામાં આવ્યો. બોનોબોઝ મૂક્યો અંદર, પાંજરું બંધ કર્યું અને એની ઉપર જેવું સ્ક્રૂડ્રાઈવર અંદર ફેંક્યું તો ધ રાઇટ ઇન લેસ ધેન 30 મિનિટ્સ
Bonobo would have learned to figure out how to use, unlock the door and escape from the cage. 30 મિનિટની અંદર એ લોકના સ્ક્રૂ ખોલવા, કેવી રીતના એનો ઉપયોગ કરવો, અને અડધો કલાકની અંદર તો બહાર હતો. તો આ જે બોનોબોની વિચાર કક્ષા છે એનું તારણ કાઢવામાં આવ્યું, અને એ જે ઝૂ કીપર એવો તારણ કાઢ્યું આ પ્રયોગ પરથી કે માણસની જે વિચારવાની ક્ષમતા છે, આ બોનોબોઝ જે રીતના વિચારી શકે છે એ માત્ર ને માત્ર 5 વર્ષના નાના બાળક જેટલી છે. તો અત્યારે તો આપણે યુવાન છીએ, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે, પોતાના જીવનની અંદર કંઈક અલગ વિચારે છે. તો એમણે શું કહ્યું કે આપણા સત્સંગની અંદર પણ એવું જ્યારે જોવામાં આવે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે કેટલાક લોકો છે એ પેલા ગોરીલા ટાઈપ હોય, કેટલાક લોકો એ ચિમ્પાન્જી જેવા હોય, અને કેટલાક લોકો એ બોનોબોઝ જેવા હોય. ગોરીલા જેવા હોય કે એના હાથની અંદર પેલું સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર આવ્યું, પણ 7 દિવસ પછી તો એને ખબર પડી કે મારા માથા પર કંઈક વાગ્યું હતું. એમ આપણા સત્સંગની અંદર કેટલાક માણસો એવા હોય કે જે સ્લો રિસીવર હોય, સત્સંગી હોય પણ સ્લો રિસીવર હોય, ઇનસેન્સિટિવ હોય, બુદ્ધિ અને વિચારની કક્ષા એ લોકો પાસે નથી હોતી. બીજો જે ચિમ્પાન્જી મૂકવામાં આવ્યો, એ ચિમ્પાન્જીએ પાંજરું સ્ક્રૂડ્રાઈવર હાથમાં તો આવ્યું, પણ આમ તેમ તોડફોડમાં પ્રયત્ન કર્યો. એમ આપણે સત્સંગની અંદર હોઈએ અને ભગવાનને ઘણીવાર પ્રાર્થના કરતા હોઈએ કે હું બસ મિસ કરી જાઉં છું, તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે મારી બસ મળી જાય. આપણે સામાન્ય જોબ માટે કે એવી નાની નાની બાબતમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ. બુદ્ધિ અને વિચારની કક્ષા નથી. પણ એ કહે છે બોનોબોઝ જેવો અંદર પેલું સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર ફેંક્યું, 30 મિનિટ્સમાં હી કેન ઓપન ધી કેજ. 30 મિનિટની અંદર એ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર કેવી રીતના ઉપયોગ કરવો, કેવી રીતના લોકના સ્ક્રૂ ખોલવા, અને અડધો કલાકની અંદર તો એ બહાર હતો. તો મિત્રો, સમજવા જેવું એ છે કે એને બુદ્ધિ અને વિચારની કક્ષા એ લોકોએ માપી અને તારણ કાઢ્યું. તો આપણા સત્સંગની અંદર પણ આપણે આવા સમયા ઉત્સવ ભરીને, એવું કહેવાય છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતની અંદર વાત કરી છે કે આ જે સમયા ઉત્સવ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે અહીંયા સંતો હરિભક્તો હોય. અહીંયા આ પ્રમુખ સ્વામી નગરની અંદર 80,000થી પણ વધારે સ્વયંસેવકો અત્યારે સેવા કરી રહ્યા છે, અને એ પણ નિસ્વાર્થ ભાવે, અને એક મહિના સુધી, ઘણા તો એક વર્ષ સુધી પણ અહીંયા સેવા કરે છે. તો આ જે સંતો હરિભક્તો અહીંયા હોય, પાર્ષદો હોય, એમની થોડી પણ સ્મૃતિ થઈ આવે તો આપણું જીવન પરિવર્તન થઈ જતું હોય છે, આપણો મોક્ષ થઈ જતો હોય છે. અને એના માટે આપણે આ કામ કરવાનું છે. અને એના માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવો સમયા ઉત્સવ પહેલાં પણ કરતા. 1985ની સાલમાં ગુણાતીત દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાયેલો મેમનગર યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે, એ પણ લગભગ 2 મહિના સુધી ચાલેલો આ ઉત્સવ. તો એ ઉત્સવ ઉજવાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતની અંદર વાત કરી કે આ ઉત્સવની આપણને અંતકાળે સ્મૃતિ થઈ આવે. અહીંયા ઘણા બધા હરિભક્તો આવતા હોય છે, ઘણા બધા સંતો હોય છે, મહંત સ્વામી મહારાજ પણ અહીંયા આવે છે સભાની અંદર. તો સત્પુરુષના આપણે દર્શન કરીએ તો આપણને અંતકાળે સ્મૃતિ થઈ આવે, તો અંતકાળે આપણા જીવનું અતિશય રૂડું થાય અને આપણો મોક્ષ થાય છે. એટલા માટે આપણે ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરીએ કે મેં જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું એ દ્રષ્ટાંતની અંદર કહેવામાં આવ્યું કે 30 મિનિટ્સમાં હી કેન ઓપન ધી કેજ. નાના કે મોટા વિચારને પામ્યા હોય, એ મનુષ્ય જન્મનો હેતુ શું છે, આ જન્મે કરીને કરવાનું છે શું, એ જન્મ આપણને શા માટે મળ્યો છે, આવું વિચારીને અહીંયા જે કંઈ લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો બતાવવામાં આવે છે, ઘણા બધા પ્રદર્શનો છે, બાળનગરી છે, તો બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી દરેકને પોતાના જીવનમાં કંઈક મેળવીને જાય છે. તો એ જે આપણા જીવનમાં મળે છે એ આપણે વિચારવાનું, જીવનમાં ઉતરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, અને છેક સુધી આપણા જીવનના અંત સુધી આપણે એવું એક કામ કરવાનું છે કે આપણો મોક્ષ થઈ જાય. પેલા બોનોબોએ 30 મિનિટ્સમાં હી કેન ઓપન ધી કેજ. આ મનુષ્ય જન્મ શા માટે મળ્યો છે, આ જન્મે કરીને કરવાનું છે શું, એનો પ્રોપર વિચાર કરીને આપણે આ જન્મનો છેલ્લો જન્મ કરીને મોક્ષ મેળવીને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. સેમ સાધન તો સરખું છે, પણ વિચારની કક્ષા જુદી છે. તો આપણે પણ આ સમયા ઉત્સવની અંદર એવું કંઈક મેળવીને જઈએ કે આપણું જીવન પરિવર્તન થાય, આપણે આપણા જીવનમાં ખૂબ આગળ વધી શકીએ, સત્સંગ પ્રવૃત્તિમાં આગળ વધી શકીએ, અને જીવનમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય. એવી ભગવાન સ્વામિનારાયણ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. જય हमारे झूठे बिलीव्स कैसे टूटते हैं. जो हमारा बनाया हुआ बिलीव्स है ना, जो झूठ के ऊपर बेस है, वो कैसे टूटते हैं. मैं आपको सिंपल मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि सदियों से लोग बोलते थे कि भाई पृथ्वी वो फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, यही बोलते थे. और रातों रात कोई साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि भैया पृथ्वी गोल है. इसके बाद लोग क्या बोलने लगे, गोल है, गोल है, गोल है. मतलब कि जो हमारे झूठे बिलीव्स थे, बनने में सदियां लगती है लेकिन टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगता. वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं. सदियों से लोग कहते थे कि भाई पृथ्वी स्थिर है, इसके आसपास सूर्य परिभ्रमण करता है.
पृथ्वी वो स्थिर है, इसके आसपास सूर्य घूमता है। सदियों से लोग ऐसे कह रहे थे, लेकिन भाई एक रातों रात कोई साइंटिस्ट आया, उन्होंने डिस्कवर किया कि भैया सूर्य स्थिर है, इसके आसपास पृथ्वी घूमती है। इसके बाद लोग क्या बोलने लगे, मतलब कि हमारे जो झूठे बिलीव्स थे उसे बनने में सदियां लगती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो झूठ टूट जाता है। वैसे मैं आपको सिंपल में एक एग्जांपल देता हूं कि एक हाथी का छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा होता है, उसको एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। देखो हमारे झूठे बिलीव्स कैसे टूटने वाले हैं अब। वो हाथी का बच्चा छोटा होता है, उसमें एनर्जी नहीं होती, ताकत नहीं होती, उसको एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। वो हाथी का छोटा बच्चा उसी रस्सी को तोड़ने में कोशिश करता है, दम लगाता है, जोर लगाता है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती। वो हाथी का बच्चा उस पतली रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। अब वो हाथी का बच्चा धीरे 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 बड़ा होता गया, बड़ा हो गया। इसके बाद उसको पतली रस्सी से बांध दिया गया। वो हाथी को कहता है कि पतली रस्सी को तोड़, लेकिन वो हाथी कोशिश ही नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता। अगर कोई हाथी के कान में कहे कि वो हाथी इस पतली रस्सी को तो तोड़ सकता है, एक बार कोशिश करके तो देख, तो उसी समय वो बड़े हाथी को वो पतली रस्सी को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 5 साल, 10 साल, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वैसे ही हमारे जो झूठे बिलीव्स है ना, उसे बनने में सदियां लगती है, टूटने में 1 सेकंड। जब सच सामने आता है तो झूठ टूट जाता है। वैसे ही हमारे जो झूठे बिलीव्स है, जितने भी झूठे बिलीव्स झूठ पर बेस है, वो बनाया हुआ है। कोई साइंटिस्ट आएगा, डिस्कवर करेगा कि भाई ये झूठे बिलीव्स है, वो बनने में सदियां लगती है, लेकिन टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जब सच सामने आएगा, झूठ टूट जाएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम कोई भी काम करते हैं और हमारे सामने 10 लोग आ जाता है कि भाई तेरे में ताकत नहीं है, तू ये काम नहीं कर सकता। हम कोई काम की शुरुआत करते हैं, ऐसे लोग आ ही जाते हैं, हर एक की लाइफ में ऐसा ही होता है, ये तू नहीं कर सकता। तो लोग क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं। मैं आपको सिंपल वे में एक स्टोरी सुनाने के लिए जा रहा हूं यहाँ पे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक बार ये स्टोरी आपके जीवन में बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। और मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ, व्हाट कैन आई ट्राइंग टू से, वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। 2 बच्चे थे, 2 बच्चे गांव में रहते थे। एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और दूसरा बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। 2 बच्चे बहुत फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, साथ साथ खाते पीते थे, साथ साथ स्कूल पर जाते थे, स्कूल से वापस भी साथ आते थे। कोई भी जगह पे घूमना है तो वो साथ ही हमेशा रहते थे। 2 बच्चे, एक 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, दूसरा बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। जो 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था वो बहुत पतला था, जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं आज कि बहुत कुछ खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े नहीं होते, पतले ही रहते हैं। जो 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था वो बच्चा बहुत पतला था, और दूसरा बच्चा वो 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, वो बहुत फैट था। आज की दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ डाइटिंग करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन फिर भी वो फिट नहीं हो पाते, वो बड़े ही रहते हैं। कई लोग ऐसे ही रहते हैं। तो 5वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाला बच्चा बहुत पतला था, 8वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाला बच्चा थोड़ा फैट था। उसमें उसका वेट अप टू 70-80 kg था। वो दोनों सब क्रिया एक साथ में ही करते थे, साथ में रहते थे, साथ में स्कूल पर जाना मैंने अभी बताया आपको, तो सब क्रिया एक साथ ही करते थे। एक बार क्या हुआ कि दोनों बच्चे खेलते 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 गांव के पास एक कुआं था, उस कुएं के पास खेलते खेलते आ गए। और उसी समय ऐसा हुआ कि वो कुएं के पास आ गए और खेल रहे थे दोनों बच्चे। तो जो बड़ा वाला बच्चा था, जो 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, उसका वेट अप टू 70 kg था, 80 kg था,
वो बच्चा बहुत फैट था, वो सडनली उस कुएं में गिर गया। तो पतला वाला बच्चा था, उन्होंने आसपास में देखा, चिल्लाया कि कोई है, बचाओ बचाओ उसको। लेकिन वो पतले बच्चे की आवाज को सुनने वाला उसी समय कोई नहीं था। उन्होंने बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं, कोई घर भी नहीं था, सुनसान एरिया था, किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। तो उसी समय क्या किया कि बिना टाइम वेस्ट किए उस पतले बच्चे ने क्या किया, पास में एक रस्सी पड़ी थी, रस्सी को बांधा और बड़े बच्चे को कहा कि तुम रस्सी पकड़ ले, और वो जोर लगाने लगा और तब तक न रुका जब तक उसने उस बड़े बच्चे को बाहर नहीं निकाला। जोर लगाया, दम लगाया, कोशिश करी और उसको फाइनली बाहर निकाला। और बाहर तो निकाल दिया। ये स्टोरी यहां तो खत्म हो जाती है, लेकिन भाई असली स्टोरी यहां से शुरुआत होती है। वो दो बच्चे फिर से खेलते खेलते उन्होंने आभार माना कि आज तू नहीं होता तो मैं डूब जाता, मैं मर जाता, लेकिन तुमने मुझे बचाया, आपका बहुत बहुत आभार। तो वहां पे वो खेलते खेलते वापस गांव में गए और उसी समय गांव वालों को बताया, अपने मम्मी पापा को बताया कि देखो पापा, देखो मम्मी, वहां पर गिर गया था कुएं में और मैंने रस्सी से उसको बाहर निकाला। मम्मी पापा ने उस पर विश्वास नहीं किया। आजू बाजू सबको मिला कि भाई देखो ये कुएं में गिर गया था, सभी फ्रेंड्स को मिला, सभी गांव वालों को मिला कि देखो ये गिर गया था और मैंने उसको निकाला, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। विश्वास कैसे करता कि वो पतला बच्चा एक सिंपल सी कुएं में से बाल्टी भी बाहर नहीं निकाल सकता, तो बड़े बच्चे को बाहर निकालना तो बहुत दूर की बात है, नहीं निकाल पाएगा। किसी ने भी विश्वास नहीं किया। दोनों बच्चे सबको कहते कहते एक गांव में सबसे समझदारों में से एक, जिसको सब रहीम चाचा कहते थे, वो रहीम चाचा के पास गए। रहीम चाचा के पास सबको वो दो बच्चे गए और रहीम चाचा को कहा कि देखो ये बच्चा गिर गया था और मैंने उसको निकाला। रहीम चाचा ने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि वो समझदारों में से एक थे। और रहीम चाचा ने इसके बाद क्या किया कि सभी गांव वालों को वहां पर इकट्ठा किया। सभी गांव वालों वहां पर इकट्ठा किया और कहा कि आप उस पर विश्वास क्यों नहीं करते। ये पतले वाले बच्चे ने बड़े वाले बच्चे को बाहर निकाला, रस्सी से कुएं में से बाहर निकाल दिया, आप उस पर विश्वास नहीं करते। तो गांव वाले कहने लगे कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। क्यों असंभव? कि पतले वाले बच्चा जिसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, बड़े वाले बच्चे को बाहर कैसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है, ये झूठ है, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। रहीम चाचा ने सबको बताया कि देखो उन्होंने, वो बच्चा गिर गया था, वो भी सही है, पतले वाले बच्चे ने उसको बाहर निकाला, वो भी सही है। रहीम चाचा ने सबको बताया कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पतले वाले बच्चे ने बड़े बच्चे को कैसे निकाला। सब लोग रहीम चाचा की नजर देख रहे थे, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि उस पतले वाले बच्चे ने बड़े बच्चे को क्यों निकाला। क्यों निकाला भाई? रहीम चाचा ने सबको बताया कि जब वो बड़ा वाला बच्चा कुएं में गिर गया था, उसी समय उस पतले वाले बच्चे को उसी एरिया में दूर दूर तक कोई बताने वाला नहीं था कि ये काम तू नहीं कर सकता, कोई बताने वाला नहीं था, इसीलिए उन्होंने निकाल दिया। फ्रेंड्स, ये बात हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो 10 लोग हमारे सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई ये तू नहीं कर पाएगा, ये तू नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं? उसकी सुनते हैं और हम वो काम को छोड़ देते हैं। हम इसमें आगे ही नहीं बढ़ते, दूसरा काम पकड़ लेते हैं और दूसरा काम करते हैं। इसमें भी लोग आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि भाई ये तुम्हें नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं? उसको भी छोड़ देते हैं, तीसरा पकड़ लेते हैं।
तो क्या हमको भी उस पतले बच्चे की तरफ दूर दूर तक कोई भी कहने वाला ना हो कि तुम ये काम नहीं कर सकता, तो हम कितना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। नमस्कार, मैं कल्पेश सोलंकी आज आपको ये बताने वाला हूं कि हाउ टू अचीव योर गोल। अपने गोल को कैसे हासिल किया जाए, अपने लक्ष्य को कैसे पाया जाए, अपना जो इल्यूजन बनाया हुआ है उन सारे इल्यूजन को आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, अपनी जिंदगी को आप बदलना चाहते हो, तो ये स्पीच आपको बहुत उपयोगी है। हाउ टू अचीव योर गोल, अपने लक्ष्य को कैसे सिद्ध किया जाए। इस दुनिया में 90% लोग हैं जिसके पास कोई गोल नहीं है, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, बस वैसे ही वो बस स्टेशन पर गए हैं, रेलवे स्टेशन पर गए हैं, उसको पता भी नहीं है कि मुझे कौन सी बस में बैठना है या कौन सी ट्रेन में बैठना है। क्या वो सही डायरेक्शन पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको कोई गोल ही नहीं है। इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिसका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं बनाया हुआ है। बाकी 10% लोग, इसमें से 8% लोग ऐसे हैं कि जिसमें गोल बनाया है लेकिन इसके बीच में आने वाले अट्रैक्शन को वो हटा नहीं पा रहा है, और गोल तो बनाया है लेकिन अट्रैक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाकी बचे हुए 2% लोग ऐसे हैं जो अपना गोल बनाते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को पा सकते हैं, उसी इल्यूजन को अपनी जिंदगी में रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही है 2% लोग। आपको 98% में आना है या 2% में आना है, आप सोच सकते हो कि मुझे कहां पर जाना है, मुझे गोल को अचीव करना है या मुझे गोल को अचीव नहीं करना है। गोल को अचीव नहीं करना है तो आप घूमते रहो, फिरते रहो, सोते रहो, कुछ भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आप 2% में से आना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बनाया हुआ गोल को, लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, मतलब कि पाना चाहते हैं, तो आपको जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं उस पर ज्यादातर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि इस दुनिया में 90% लोग हैं जिसमें कोई गोल नहीं है, बचे हुए 8% लोग जिसको गोल पता है लेकिन अट्रैक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बाकी 2% अपने गोल है, उस गोल को पा सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो गोल को कैसे फोकस करना है, गोल को कैसे पाना है, मैं आपको यहाँ से मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। मैंने पहला स्टेप बताया कि पहले तो गोल बनाओ, दूसरा स्टेप है अपने लक्ष्य को सिद्ध करना है। तो जो गोल बनाया हुआ है उसके बीच में कौन कौन से अट्रैक्शन आते हैं, उसी अट्रैक्शन को पहले तो ढूंढो कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैंने गोल बनाया हुआ है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, लेकिन इसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आ जाता है जो आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दूसरा स्टेप है अपने अट्रैक्शन को हटाओ, और जो मैं तीसरा स्टेप यहाँ कहने के लिए जा रहा हूँ, अपने गोल को फोकस करो। पहला क्या है, पहले तो गोल बनाओ, दूसरा स्टेप है इसके बीच में आने वाले सभी अट्रैक्शन को हटाओ, और फाइनली तीसरा स्टेप है कि अपने आप गोल को फोकस करो। ये 3 स्टेप करना आपको आ गया तो आप अपनी जिंदगी जीत गया। अपनी जिंदगी में आप चाहे हार भी गए हो, अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी आपको नुकसान हुआ हो, लेकिन उसी नुकसान को आप भरपाई कर सकते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को एक सही मार्ग पर आप ले जा सकते हैं। ये तीसरा स्टेप आपको आ गया, गोल को फोकस करो। हाउ टू फोकस योर गोल, अपनी जिंदगी में
गोल को कैसे फोकस किया जाए। जो आप 3 स्टेप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, he has been able to change his life, he has been able to change other people's life and they have been able to change the world they living। समग्र विश्व को बदलने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। तो मैंने 3 स्टेप बताया। पहला स्टेप है गोल बनाओ, दूसरा स्टेप है इसके बीच में आने वाले सभी अट्रैक्शन को हटाओ, और फाइनली उस गोल को फोकस करो। तो तीसरा स्टेप है, उस पर ज्यादा तक थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं कि गोल को फोकस कैसे करना है, हाउ टू फोकस योर गोल। इसके लिए मैं एक आपको महाभारत की एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, एक कहानी सुनाने वाला हूं। देखो, ये कहानी पिछले आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ये समझकर छोड़ दी होगी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी, उस पर ज्यादा तक ध्यान नहीं दिया होगा। देखो, आज हमारा माइंड क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है कि यहां से मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं, यहां से इकट्ठी कर लूं, गूगल पर कुछ सर्च करो, यूट्यूब पर देख लूं, इंस्टा पर देख लूं, न्यूज़पेपर पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि आपको सच में आगे बढ़ना है या सब में कुछ करना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। यह है आज के हमारे टाइम की एक्चुअल रियलिटी। तो मैं कहां पर फोकस करने वाला हूं, ध्यान से सुनना कि यह है महाभारत की कहानी। द्रोणाचार्य का नाम आप सबने सुना होगा। एक बार द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को अपने पास बुलाया। 5 पांडवों में थे युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, अर्जुन, नकुल। 5 पांडवों को अपने पास बुलाया और सामने एक पेड़ रखा था और पेड़ पर एक पक्षी रखा था। 5 पांडवों को कहा कि उसी पक्षी की आंख में आपको निशाना लगाना है। अब गोल सेट हो गया, क्या करना है, उसी पक्षी की आंख में आपको निशाना लगाना। सबको गोल सेट हो गया, करना क्या है। देखो, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, गोल बनाना चाहते हो, तो पहले तो गोल सेट करो। जैसे गुरु ने गोल सेट किया, उसकी पक्षी में आंख में आपको निशाना लगाना। तो एक करके एक आया। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, उस पक्षी की आंख में धनुष से तीर लगाने लगा। जब वो निशाना लगा रहा था, उसी समय गुरु इसके पास आया, उसको आकर कहा कि युधिष्ठिर रुको, पहले मुझे ये बताओ कि आपको यहां पर क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी, यहां मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, टहनियां दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। बहुत अच्छा, आप जाके साइड में खड़े हो जाओ। दूसरा आया भीम, ये आकर निशाने लगाने लगा। वो निशाने लगा रहा था, उसी समय गुरु ने उसको एक ही क्वेश्चन पूछा जो युधिष्ठिर को पूछा था कि भीम, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। भीम ने कहा कि गुरुजी, मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पत्ती दिख रही है, नदी दिख रही है, टहनियाँ दिख रही है। वो दूसरा भी और 3 पक्षी उड़ रहा है, वो भी मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा, आप भी जाके साइड में खड़े हो जाओ। एक करके एक फाइनली कौन आया, अर्जुन आया। जब अर्जुन आया, पक्षी की आंख में निशाने लगाने लगा। उसी समय गुरु ने अर्जुन को वही क्वेश्चन पूछा जो सबको पूछा था कि आपको यहां पर क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कि गुरुजी, मुझे यहां पर उस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने कहा, थोड़ी हिलाने की कोशिश करी कि नहीं, और भी देखो, और भी बहुत कुछ, आपको कुछ नहीं दिख रहा। नहीं गुरुजी, मुझे उस यहां पर पेड़ पर पक्षी की सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है। गुरु ने कहा कि अब निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया जाके उस पक्षी की आंख में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? गोल को फोकस किया। जो भी लोग अपने जिंदगी में, चाहे लौकिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे कोई भी गोल हो, चाहे टेम्पररी गोल हो, चाहे अल्टीमेट गोल हो, कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, कोई भी गोल को, कोई भी लक्ष्य को, कोई भी इल्यूजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले स्टेप बनाओ, दूसरा इसके बीच में आने वाले सभी अट्रैक्शन को हटाओ, और फाइनली गोल को फोकस करो। जैसे अर्जुन ने गोल को फोकस किया, वैसे ही आप अपनी जिंदगी में गोल को फोकस करके आप भी अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। आपकी अपनी जिंदगी को, जितना भी इल्यूजन बनाया हुआ है, जितना भी आपने लक्ष्य बनाया हुआ है, उन सारे इल्यूजन को, उन सारे लक्ष्य को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपको ये 3 स्टेप करना आ गया। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने भी लोग हैं वो 3 स्टेप अपनी जिंदगी में फॉलो करें, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, वो भी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सके। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।